बजाज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सब लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, सलाम, और साथ में जय सिया राम और हर हर महादेव। प्रदीप जी, राहुल गांधी के लिए इतनी भीड़ बनारस में, अरे बाप रे, मतलब मैं तो शॉक हो गया। मतलब इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ गए कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। आई एम whatever it is, whatever be the result of the elections, that means there are still a lot of people who believe in the Congress, which is amazing. Look at that, look at that crowd. Huge. Dude, just look at that crowd. Oh man, this is like crazy. I mean, I don't know. Have they come just to see or cheer and see and then maybe vote for the BJP? I mean, what's going on here? No, that is, sir, जो युति हो गया उत्तर प्रदेश में, जी, अखिलेश यादव एंड राहुल गांधी, जी जी, and that has actually given a lot of जो enthusiasm जो लोगों में है, जो कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं के, that seems to be that yes, it's like victory, they are sensing victory. इसमें क्लियर कट जो जो तेज, और look at the energy that they are एनर्जी उन लोगों के चेहरे पे, उनके मूवमेंट्स पे, उनके हर चीज में जो एनर्जी आप देख रहे हो, गजब का एनर्जी है सर। दिस इज, इट्स लाइक दे आर गोइंग टू विन दिस विक्ट्री। ये जीतने वाले को उल्लास है। दिस इज, you know what, long time ago when Sonia ji had just taken over the reins of the party, after getting rid of Sitaram Kesri, she had come and she addressed a political meeting at Shivaji Park. उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आज तक कभी बाला साहब ठाकरे के लिए भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आया शिवाजी पार्क में। ये बात है कोई 95 की बात है, 94 या 95 की बात है। और आप मानेंगे नहीं प्रदीप जी, उसी वक्त सबसे पहली बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन गई महाराष्ट्र में। तो मेरा ये कहना है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्राउड जो है वो असल में आपको वोट देगा। इनफैक्ट लास्ट इलेक्शन, इफ यू रिमेंबर 2019 में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तस्वीरें आ रही थी मोदी जी की खुद की मीटिंग में खाली कुर्सियां थी और मोदी जी 303 सीट लेकर के आ गए। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये तो ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वंडरफुल, बट वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन? आई होप द कांग्रेस हैज द ऑर्गेनाइजेशन along with the Samajwadi Party to get all these people up to the polling booth and ensure that they actually vote for the Congress or the Samajwadi Party and they don't vote for Modi. sir, the other way of looking at this, if this enthusiasm stays till the elections, yes, these are the people who are going to get the voters to the booths. That's right. These are the people who are going to do everything they can. The energy जो अभी emulate कर रहे, जो emit कर रहे हो, ये पूरे energy, if it stays on till the elections, these are the people who's going to bring the Congress voters from the houses to the booths, polling booths. ऐसा जी, सबसे बड़ी बात ये है, आप खुद बीजेपी में रह चुके हैं, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे प्रदीप जी यहीं पर कलीना की इलेक्शन में। आपको खुद को मालूम है कि जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, संघ के लोग कभी शोर नहीं मचाते, दे वर्क साइलेंटली। एज मार्टिन लूथर किंग सेड, when lightning strikes it makes no sound, the sound comes after it is struck, and that's the way the RSS functions, and that's how everybody is kind of sure that Mr. Modi is going to come back with a huge number of seats. At least that's what the calculation is right now. But you can't rule out the India Alliance either. They've been making deals, they've been making seat sharing adjustments and so on and so forth. In fact, there's a meeting going on right now at the Trident in Nariman Point between the leaders of the Shiv Sena, that is Mr. Uddhav Thackeray, Mr. Prakash Ambedkar, and people involved with Mr. Sharad Pawar and the Congress on who's going to get what. Mr. Prakash Ambedkar is of course demanding a huge number of seats, which I don't think he's going to get. So Maharashtra has always been a fertile land for the Congress. Actually, if they really work hard, and they can do it, because Sharad Pawar is an old congressman. The old Congress still exists.
So if they both come together, somehow over the last decade, they have not been able to take that huge stride of I the tell you what, 140 mark. I don't know why they don't realize what they need to do. सबसे बड़ी बात है शरद पवार जी को कांग्रेस में जाना चाहिए और कांग्रेस का नेता बनना चाहिए. सीधी बात है. आपके पास इतना बड़ा नेता है, शरद पवार जी हैं, तो जा करके कुछ बनता है. शरद पवार वर्सेस नरेंद्र मोदी ये बनता है. राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जरा anyway, I have a different view on this. At the moment with us from the BJP, our very old friend Mr. Abhishek Mishra, man about town, all over the place. Abhishek Mishra ji, namaskar. प्रणाम. नमस्कार नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम. जय सिया राम सर, जय सिया राम. हर हर महादेव. अरे भाई, आपकी तस्वीरें देख रहे थे हम लोग फेसबुक पे और अलग अलग जगह पे. इतनी खूबसूरत खूबसूरत कन्याएं आपके साथ हैं. ऐसे लग रहा है कि कोई अप्सरा खड़ी है आपके साथ. ये क्या हो गया? बस एक मुरली मिसिंग है. मतलब या तो मतलब श्री कृष्ण बन गए आप. तो लगा सर आए. अभिषेक मिश्रा जी, इसके पीछे राज क्या है जरा बताएं प्लीज. राज ये है कि ज्योतिष में जो शुक्र ग्रह है वो मेरे फर्स्ट हाउस में बैठा है और बहुत बलवान है, तो शुक्र का प्रभाव है. तो शुक्र जो है आपके लग्न में के फर्स्ट हाउस लग्न में है और बहुत बलशाली शुक्र है. हाय हाय हाय, कमाल है कमाल है. तो मतलब आपका मतलब वृषभ लगन होगा जहां तक मैं समझता हूँ. नहीं, मिथुन लगन है. मिथुन लगन है. चलिए, फर्स्ट मिथुन लगन है. 3 नंबर का मतलब बुध के घर में शुक्र बहुत बलशाली माना जाता है और असेंडेंट में अगर शुक्र है, हाय हाय हाय, तब तो बल्ले बल्ले, कमाल है, जबरदस्त सर. विच मीन्स प्रदीप जी, अभिषेक मिश्रा जी से हमें बना के रखनी पड़ेगी. बिकॉज व्हेन द चैनल नीड्स at least 1000 or 2000 crores next time we must go to Abhishek Mishra. Yes, he is a guy who's going to get us. क्योंकि शुक्र जब जिसका शुक्र स्ट्रांग है सर, उसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता. जबरदस्त. एंड बाय द वे, दैट इज सीरियस एस्ट्रोलॉजी. ये भी आपको बता दूं, 1000-2000 करोड़ की बात अलग है, लेकिन दैट इज सीरियस एस्ट्रोलॉजी. शुक्र जिसका बलवान होता है, कलयुग में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता. सीधी सादी बात है. बट लवली टू सी यू, रियली एंड ट्रूली गेटिंग अबाउट all over the place and talking to everybody else. You really, apart from jokes apart, you've really been working very, very hard all over the place. You've been spreading the message of the BJP and of the RSS, and that is absolutely fantastic. And by the way, Mr. Modi, I think you know, he doesn't tire. He does not get tired. Look at him. He's all over the place. He's visiting at least 5 to 6 places, you know, in one day. And apart from that, look at the projects that he has just announced. I mean, this is amazing. The railways, the Indian railways, have never received such a huge boost as they have under Mr. Modi. Abhishek Mishra ji, कुछ बताएं इसके बारे में जरा प्लीज. देखिए, the point is very simple. जी. When a leader is focused towards the future, when a leader is not focused on only merely what is going to happen in the next elections, then he works for the people in a long-term basis. All the other regional parties in India, if you see the style of functioning, their only purpose is to win the next election. So all their, all their development schemes is confined to, wherever they have some MLA who is powerful. For example, जब अखिलेश की सरकार थी इन उत्तर प्रदेश, वो सफाई महोत्सव करते थे जहाँ से उनका परिवार का बहुबल था. ये जो क्षेत्र है, सफाई, मैनपुरी, अब पूरा उत्तर प्रदेश जो है सिर्फ सफाई महोत्सव तक सीमित रह गया. अब क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है, उसको राष्ट्र की और विकास की और जनता की चिंता नहीं. परंतु मोदी जी का क्योंकि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, he has a long term vision to make India a developed nation. So he is doing everything, though it is absolutely sure he is coming to power again with a thumping majority, excess of 350 seats, but still instead of taking rest, he is saying नहीं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. चुनाव में तो हम जीत ही रहे हैं, बट लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के लिए दिन रात काम करना होगा. दिस इज द स्पिरिट. फॉर एग्जांपल इन द यूपीए गवर्नमेंट, एवरीथिंग वाज पैरालाइज्ड. व्हाट द मिनिस्टर्स यूज्ड टू से टू ईच अदर इज, अभी 5-6 महीना और मंत्री पद एंजॉय कर लो. आई रिमेंबर ये मुकुल वासनिक और ये जो मनीष तिवारी वगैरह थे, लास्ट 2-3 years of the UPA government, nobody worked, everything stopped, only enjoyment. But here last 3 weeks of the government, and yet Modi ji is working day and night. This is the beauty of the BJP government, this is the beauty of the NDA, and this is the greatness of Narendra Modi. Mishra ji, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi together, Uttar Pradesh के पूरे दौरा. This is farmers' protest. Farmers' protest is absolutely linked to the government's false promises. Modi ji के झूठे वादे. That is why the farmers' protest is taking place.
एवरी लेवल देयर इज स्ट्रगल. प्रियंका गांधी से हर लेवल पे, हर सेगमेंट पे स्ट्रगल चल रहा है. Few industrialists are only flourishing in this rule. Priyanka Gandhi. Only few industrialists are, getting benefits. So he said, unite to fight. Fight against injustice. किसान, महिला, युवा, श्रमिक, सबका न्याय के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभी जो अलायंस है, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन. तो how do you see this? Priyanka Gandhi stepping up the ante in Uttar Pradesh. See, I have one simple advice for Priyanka ji. If she is so confident that there is any discontent against BJP, why does she not go and say I'll contest from Raebareli? In fact, an Indian Express report came yesterday, and the report clearly said that when कार्यकर्ता of the Congress went to Priyanka ji कि आप contest कीजिए, हम तैयारी शुरू करते हैं, she refused. So a leader who does not have the guts to contest against BJP in Uttar Pradesh, that leader should stop making false allegations and accusations. A tiny minority of the large number of farmers in India, if they, for political considerations, for various other reasons, if they say something against the government, it does not mean that there is a mass discontent or farmers are discontented. The farmers have got money in their bank accounts, they have got subsidy in urea, they have got most of the crops which they grow is already on MSP. So the farmers, and whatever laws they wanted to be repealed has already been repealed 2.5 years back. So there is no mass discontent, and Priyanka Gandhi, if she believes, I once again repeat, if she has the guts, ask her to contest, ask her to start preparing, ask her to say openly मैं लड़ूंगी बीजेपी के खिलाफ यूपी में. She does not have the guts. दिल्ली में बोलना बड़ा आसान है, एसी में बैठ के जनता के सामने खड़े होकर दिखाइए. Now, Abhishek Mishra ji, here I think you will find a lot of people who agree with you. After all, what prevents her from, contesting? What prevents her from standing for election? लोग बहुत बोल रहे थे कि भाई प्रियंका गांधी इज लाइक मिसेस इंदिरा गांधी एंड सो ऑन सो. इंदिरा जी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा. हमेशा चुनाव लड़ा है, भले हारी भले जीती. एक बार हारी हैं रायबरेली से, वैसे हमेशा जीतती रही हैं. लेकिन यहाँ पर आपसे एक ये जो दूसरा सवाल है, जो आपने फार्मर्स की बात करी. फार्मर्स जो हैं अभी, उनका ये कहना है कि जब उन्होंने अपनी एजुटेशन वापस ली, फार्म लॉज रिपील हुए, तब उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि एमएसपी के ऊपर एक प्रॉपर प्रपोजल आएगा गवर्नमेंट से, और इनफैक्ट अ लॉ विल बी पास्ड ऑन एमएसपी. वो नहीं हुआ है, इसलिए हमें जबरन ये एजुटेशन करनी पड़ी है. अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, बातचीत जो होता है, प्रपोजल जो होता है, इट रिक्वायर्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट where both parties are ready to come to some kind of a compromise. ठीक है, सरकार उन्हीं की है. भारत सरकार हर भारत के नागरिक की सरकार है जी. ये सरकार उन्हीं की सरकार है, और जो हमारे किसान है वो इस देश की नींव है, वो हमारे अन्नदाता है. तो किसान और ये सरकार उन्हीं की सरकार है, और वो हमारे ही किसान है. तो हमें आपस में बातचीत का माहौल, एक सकारात्मक माहौल लेके, मन में ये भावना लेके कि कैसे इस राष्ट्र का भला हो और कैसे हर किसान का भला हो और सरकार कैसे अपने सही समाधान पे पहुंचे, ये भावना होनी चाहिए. परंतु अब इसमें समस्या क्या आ गई, कुछ राजनीतिक दल जो डायरेक्टली नहीं सामने आना चाहते, और कुछ ऐसी शक्तियां जो किसी तरह से भाजपा विरोध, मोदी जी के विरोध में है, वो शक्तियों ने इन किसानों को इस तरह कहा कि देखो ये सरकार तुम्हारी सुनेगी नहीं, सरकार तुम्हारे लिए हित नहीं सोचती है. तो उनके पहले दिन से बयान ही इस प्रकार से है कि सरकार हमारे हित नहीं सोचती, हमारा बुरा चाहती है, हम तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे. हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको दिल्ली आने का अधिकार है, परंतु इतने हजारों ट्रैक्टर लाने का क्यों आप ट्रैफिक को समस्या देना चाह रहे हो? आप सब आइए बस में बैठ के. ये हाईकोर्ट का जज, भाजपा ने नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि सब बस में बैठ के आइए, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है पीसफुली, परंतु लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टरबेंस ना हो, ये सरकार का दायित्व भी है. तो किसान के साथ सरकार 4 राउंड की बातचीत कर चुकी है, 5वें राउंड का प्रस्ताव दिया गया है जी. भाजपा सरकार, केंद्र सरकार गंभीर है. जैसे पिछली बार हम बातचीत कर रहे थे कि बताइए क्या समस्या है इन कानूनों में, अगर समस्या दिखेगी तो हम वापस लेंगे. तो आदरणीय मोदी जी ने वापस लिया ना कानून. जब लगा कि हाँ, मोदी जी ने स्वयं कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम नहीं समझा पाए, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, हमारे मालिक हैं, किसान हमारे भगवान हैं, हम वापस लेते हैं कानून आपके सम्मान में. तो जब ऑलरेडी एक बार मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने दिखा दिया कि किसान हमारा सर्वोपरि है, किसान सब कुछ है, तो अब उन किसानों का डाउट क्यों क्रिएट किया जा रहा है चुनाव से पहले?
किसानों को तो मोदी जी पे भरोसा होना चाहिए कि ये आदमी अपनी बात का पक्का है। तो इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। किसान अच्छे मन से जब बातचीत होगी, समस्या हल होगा, किसान के हित में हल होगा। ये भी मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूं। ये भारत देश किसानों का देश है। भाजपा मोदी सरकार किसानों को नमन करती है, सम्मान करती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है सरकार की तरफ से, जैसे पीयूष गोयल जी ने पिछले दिनों बात करी थी और अभी मुंडा साहब भी बात कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भाई ये प्रपोजल्स हैं, 5 प्रपोजल दिए हैं किसानों को अगले 5 साल के लिए, कि ये इतनी दालें, साथ में मेज़, और जहाँ तक के जो एमएसपी है वो तो पहले से ही है, गेहूं पर, चावल पर, कॉटन पर, वो तो है ही। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें ऐड करी गई हैं किसानों द्वारा, उस पर भी तकरीबन मुझे लगता है कि एग्रीमेंट हो गई है। देयर इज अ 5th राउंड ऑफ टॉक्स, आई थिंक इट विल आइदर हैपन टुमारो और इट विल हैपन डे आफ्टर। I am very confident, very frankly, I don't know what you think, I am very confident with Mr. Piyush Goyal there. I am reasonably certain the farmers should agree. मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट हो जानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है अभिषेक मिश्रा जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जानी चाहिए। देखिए, एग्जैक्ट टेक्निकल पॉइंट्स पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। ऑलरेडी द ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, मुंडा जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर है, सब बातचीत कर दें। टेक्निकल पॉइंट्स पे क्या फोर्थ नेगोशिएशन होगा, एज ए स्पोक्सपर्सन आई कैन नॉट कमेंट। It's a technical matter. What I am saying is the government, in a very fair spirit, in a spirit of agreeing that the farmers should get their due, that the farmers should be economically viable, that the farming in India should prosper, is giving assurances to farmers, is ready to make laws, is ready to do all things required where the farmers are benefited. And farmers also, many of them understand it. Yes, the government of India is very honest with them. So I hope that very soon a solution which benefits the farmers of India will come, and the whole nation will feel happy about it. So let us wait. Let us not. I don't want to discuss the technical parts because they can keep changing. Prime Minister Modi in Dwarka, Modi ji in Dwarka, the Sudarshan Setu, and he went and met the submerged Dwarka. वहाँ पर भी गए. They called it a spiritual and historical convergence. Spiritual and historical convergence. We as political observers can see Prime Minister Modi appealing to the 80% Hindutva voters and electorate. That is Prime Minister Modi, and he's been absolutely successful. But Rahul Gandhi ji, उनका calculation है कि 88% backward, Dalit, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये उनका फॉर्मूला है। 88% आउटरीच। बोले कि दिस बिग कॉर्पोरेट्स मैनेजमेंट में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये लिस्ट आपको मिलेगा मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिस्ट में। सामाजिक न्याय के लिए, आदिवासियों के न्याय के लिए राहुल गांधी इज वर्किंग। अन्याय होने नहीं देंगे ये चारों। बट ही इज गॉट हिज टारगेट राइट। यू नो मिश्रा जी, 88% उनका टारगेट है, गिनती करके रखा है। ही इज अपीलिंग टू द 88% इलेक्टोरेट। मिश्रा जी, see, good question. See, what has happened is Rahul Gandhi is living in a fool's paradise. आपने एक अच्छा सवाल शुरू में किया था कि where are these crowds coming from? Yes. Okay. I would love to know. So yeah, that's a good question. So you know, देवानंद, अब राजीव बजाज जी को पता होगा जी, देवानंद जब इमरजेंसी था भारत में, देवानंद had started his own political party. yes, he started it, yes. Okay, and Devanand had more crowds Then the Janata Party. Indira Gandhi. Then the Janata Party, absolutely correct. Yes. ठीक है, and he had less votes than even a district level party. No votes he got. सब हार गए, डिपॉजिट जब्त। तो राहुल गांधी देवानंद है। हाँ, तो राहुल गांधी एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट इन हाउ टू डू मिमिक्री, फन। सो यस, आज के वर्तमान युग का पॉलिटिकल देवानंद, जैसे इमरजेंसी में देवानंद आए, लोग की भीड़ आई और कोई वोट नहीं दिया, वो राहुल गांधी है। और मैं सम्मान करता हूं कि भारत की जनता को जो मनोरंजन चाहिए, जो एक मजा चाहिए, जो राहुल गांधी ने कहा था, मजा आ गया। इफ यू रिमेंबर, राहुल गांधी ने वन ऑफ द इंटरव्यूज हैड सेड कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, मैं दूंगा लोगों को मजा। सो इमेजिन अ पॉलिटिकल लीडर हु ब्रेन वर्क्स दैट वे कि मजा नहीं आ रहा है, मैं मजा लूंगा। सो ही इज बेसिकली यू नो अ काइंड ऑफ अ फनी गाय। सो ठीक है, मैं खुश हूं
कि he is traveling and giving some people social entertainment which is required because people need deviation from their normal life. So I'm happy that he is the political comedian. तो जो अभी क्राउड्स आ रहे हैं राहुल गांधी की मीटिंग में, कैन वी शो दोस क्राउड्स प्लीज? आई रियली वुड लाइक जनाब अभिषेक मिश्रा जी टू आल्सो सी कि तो आपके मुताबिक ये देखेंगे, चीयर करेंगे, सब कुछ करेंगे और आखिर में वोट बीजेपी को देंगे? कहने का राजीव जी आप एक काम कीजिए जी, आप जो है बॉलीवुड में कोई प्रसिद्ध नहीं है वो अभिनेत्री उर्वशी रौटेला जी, ठीक है, आप उर्वशी रौटेला को बोलिए कि मलाड बोरीवली या बनारस कहीं पे जीप में खड़ी होकर चली जाए, इतनी भीड़ आ जाएगी। आप समझिए इंटरटेनमेंट वैल्यू देखने के लिए, मौज मस्ती के लिए कि देखे हुए कलाकार आया, आर्टिस्ट आया है, लाखों लोग आ ही जाते हैं, उसको सीरियस पॉलिटिकल नहीं लिया जाता। I bow to your knowledge of Bollywood. आजकल बार-बार ऐश्वर्या राय का नाम ले रहे हैं ना, आजकल राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का नाम, आज अगर ऐश्वर्या राय जी अगर कहीं जाए तो उनको 10 गुना भीड़ आएगी राहुल गांधी से ज्यादा, और अमिताभ बच्चन जी अगर निकल जाए इस तरह जीप पे तो 100% भीड़ आ जाएगी, सब निकल जाएंगे अमिताभ बच्चन को देखने। तो भीड़ को राजनीतिक गंभीरता से, पॉलिटिकल मैच्योरिटी से, पॉलिटिकल लीडरशिप से और इलेक्शन वोटिंग से प्लीज कंपेयर मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी का जब भी दौरा निकला, when he was going through Varanasi, BJP is projecting UP as an ideal development showcase. पहले रामपुरी और देसी कट्टा जो बनाते थे उत्तर प्रदेश, आज ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे, डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे, हाई रेंज ऑफ एंटायर इक्विपमेंट्स वहां पर। एक मिसाल के तौर पर यू आर शोकेसिंग इट। राहुल गांधी जी वाराणसी के सड़क पर लेट नाइट जा रहे थे, बोले हजारों युवा दारू शराब के नशे में रोड पे लेटे हुए, ये आपका शोकेस मॉडल है, ये डेवलपमेंट मॉडल है। दैट इज व्हाट राहुल गांधी सेज। ये अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी को लड़ना है। नाउ वेयर दिस, आई मीन इट इज साउंड वेरी फैसिनेटिंग। रामपुरी बनाने वाला आज ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे उत्तर प्रदेश, मगर राहुल गांधी जब जाता है ही सीज शराब से नशे में हजारों युवक वाराणसी के रोड पर लेटा हुआ है। मिश्रा जी देखिए, कहावत है सावन के हरे अंधे को सब कुछ हरा दिखता है, तो जो स्वयं नशा करने का आदी है, जो सर्टिफाइड नशेड़ी है, श्रीमान राहुल जी, जो काफी लोग दिल्ली में इसको जानते भी है, राजीव बजाज जी भी जानते होंगे, तो जो नशेड़ी है सर, ये आप बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता। हाँ, तो जो नशा करते हैं राहुल जी, तो दुनिया को भी उनको नशा, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, नशेड़ी को सब नशेड़ी दिखता है, उनकी मौज है। देखो, I had told you many times in earlier debates, Rahul Gandhi is not living a politician's life, he is just exploring the fun of life. So don't take his statement politically. जैसे अब कोई फॉरेन टूरिस्ट आएगा, वो खुद भांग पिएगा, गांजा लेगा और बोलेगा everybody is taking ganja, I love this place. वो उस टेक्नोलॉजी का आदमी है, he is here for fun, he wants to explore life, let him do his adventures और राहुल गांधी करने दो। So in effect what you're really saying is that as far as Mr. Gandhi is concerned, Mr. Rahul Gandhi, politically he will not make any difference at all. So there is one particular analysis that we have been working on, where we have worked out, the various ways in which the Congress can increase its seats. Now either the Congress goes beyond 100 or the Congress stops at 25 in the Lok Sabha elections. This time they were at 54, came down to 52. Now, what do you think is a more realistic scenario? Do you think the Congress can double its number of seats, or will the seats come down by half? See, I had already told you in prior debates that Congress will not cross 30. But please don't take my statement. Please take the statement of India Alliance member Srimati Mamata Banerjee. Sushri Mamata Banerjee. Ji. And Mamata Banerjee clearly mentioned कि Congress will not cross 40. So Mamata Banerjee जो कह रहे हैं बंगाल से, हम उनकी बात का सम्मान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट क्रॉस नहीं करेगी। मैं भाजपा प्रवक्ता तो कह दूंगा कि 30 क्रॉस नहीं, लेकिन ममता जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में बैठ के जो उनको नॉलेज प्राप्त हुआ है कि 40 पार नहीं करेगी, आपको भी उसको सम्मान करना चाहिए। ममता जी की बात को सम्मान कीजिए कि कांग्रेस विल नॉट क्रॉस 40। जी, कांग्रेस विल नॉट क्रॉस 40। ममता बनर्जी से जी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेड कि हो सकता है कि 40 का आंकड़ा भी क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट दे नो इट, डोंट दे? आई मीन एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न, दे आल्सो नो इट, राइट?
So why wouldn't they be taking any steps to improve their situation? Just a wild guess. Yeah, good question. Good question. The answer is, unless you understand the basic fact that Rahul Gandhi does not spend in time in India for politics. He spends his time here for his explorations of his inner mind. He's here for fun, for exploration, for joy. He's, if you remember Rajiv Bajaj ji, Ji. when he was made the Congress vice president, Yes. his statement was, power is poison. राहुल गांधी has told कांग्रेसमैन सत्ता से दूर रहो, जहर है सत्ता, सत्ता नहीं प्राप्त करेंगे, हम आनंद लेंगे, टूरिज्म करेंगे, जाएंगे, हंसेंगे, बात करेंगे, बातें करेंगे. So let him do his journeys of life. He has said politics is poison, power is poison. That is why Rahul Gandhi is determined कि मैं इस पॉइजन से और दूर करूंगा कांग्रेस को, 50 एमपी भी नहीं आने दूंगा, मैं 20-30 पे लेके रहूंगा, मुझे इस जहर को मिटाना है. भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, तानाशाह के फरमान से नहीं चलेगा. दैट इज राहुल गांधी. बोले कि नफरत के बाजार में प्यार और मोहब्बत के दुकान बसाऊंगा, नफरत को सिर्फ मोहब्बत ही खत्म कर सकती है. नाउ लुक एट द वे ही इज ट्राइंग टू आइडियलाइज दैट मोदी जी नफरत के बाजार खड़ा कर दिया पूरे देश में, एंड ओनली ही विल सक्सीड बिकॉज प्यार और मोहब्बत के दुकान हर गली, हर गांव, हर शहर में बसाएंगे राहुल गांधी. नाउ नफरत है, यू बिलीव राहुल गांधी सेज, द कांग्रेस सेज, नफरत की राजनीति. नाउ हियर इज द मैन, महात्मा गांधी जी उसी लेवल के, उसी ढंग से, वही आइडियोलॉजी लेके प्यार और मोहब्बत के दुकान. अभिषेक मिश्रा जी. देखिए प्रदीप जी, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. क्या सम्मान के बगैर, रिस्पेक्ट के बगैर प्यार हो सकता है क्या? फर्स्ट यू आंसर दिस. जी. जोड़ो यात्रा जो, यानी आप देखो हाउ मेनी डेज, करीबन 49-50 डेज हो गए. आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. कैन देयर बी लव विदाउट गिविंग सम्मान, रिस्पेक्ट दिए बिना प्यार हो सकता है? यस और नो? प्यार तो ऐसे भी हो सकता है, किससे भी प्यार हो सकता है. You can love anything around you if you have love in your heart. Yeah. So when you have love for Mr. Rahul Gandhi says he even loves Mr. Modi. Good question. So when you love someone, yes, you also value them. You उनको सम्मान देते हो, respect करते हो. ठीक है? Now there is a video today which has been published by one of our national spokesperson Shehzad Poonawala ji, and in that he has shown that Rahul Gandhi is phoning Kamal Nath and saying, "Hey Kamal, listen here. There are people sitting here." Kamal Nath ji, who is almost 23-24 years elder to Rahul Gandhi, and the way he says, "Hey Kamal, I have people sitting here." The man who cannot give respect to elders, he cannot be a loving man. He is an evil man, arrogant man. Example, Pradeep ji, there is someone in your society who is 25 years younger to you, and he says, "Hey Pradeep, come here, listen to me. How will you feel? Please tell me." तो आपका कहना है कि प्यार और मोहब्बत के दुकान सिर्फ बातें हैं, असलियत में नहीं है. हाँ, असलियत में अहंकार है, क्रोध है. Example, there is a guy in your society who says, "Pradeep, come here, young guy. Pradeep, come here, do this." And then he says, "Pradeep ji, I am a loving guy." You say you are a mad guy. You don't know to respect elders, and you are talking about love. That is Rahul Gandhi. Now, Abhishek Mishra ji, I would like to ask you a question, which is, I would like your comment. It's not really a question. This is for the information of our viewers. अभी प्रदीप जी ने बात करी थी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की. Now the defense corridor, it has already been inaugurated. जो अडानी जी की जो फैक्ट्री बनी है कानपुर में, उसके अलावा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, these are the 6 cities which are going to be linked in a defense corridor, which are only going to be manufacturing state-of-the-art defense equipment, not just for the Indian Armed Forces but also for export. Now, if this actually comes through, because the first part has already been inaugurated, and I believe L&T and Mahindra, they are planning to shift quite a lot of their manufacturing units, especially with regard to the 155 millimeter artillery shoot and scoot gun, the new, effectively what is called Bofors number 2. I think, and plus if you factor in the number of pilgrims who are going to be going to Ayodhya,
the number of pilgrims who are going to be going to Krishna Janmabhoomi in Mathura and in Kashi, I think there will come a time very shortly that Uttar Pradesh will drive the economy of the country. एकदम Abhishek Mishra ji. मोदी जी क्लियरली सेड दैट डे इन वाराणसी कि मेरे यूपी का युवा यूपी को देश में प्रथम बनाने के लिए, विकसित यूपी के लिए संघर्ष कर रहा है. The battle right now is to make UP a developed state, a $1 trillion economy. Just as Maharashtra wants to be $1 trillion, UP is on the path of $1 trillion economy, and UP definitely will be the engine of a developed India, the main engine driving the train of developed India. You are right, Bajaj. You're absolutely right. No, because it is already a huge state. It has the largest manpower in the world. Once jobs are created in Uttar Pradesh itself, and people from UP don't have to go out to look for jobs, I think it's a separate country in itself. Pardon the pun, I don't mean it that way, but you understand what I mean. Not just a 1 trillion economy. I think it will go up to 2 trillion or 2.5 trillion, because the kind of number of people, सब एक 1.5 लाख श्रद्धालु हर रोज जा रहे हैं अयोध्या में अभी. और जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक जो बुकिंग एजेंसीज हैं, टूरिस्ट बसेस हैं, एयरलाइंस जो हैं, उनसे अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि दिस नंबर इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज. हो सकता है कि अगले साल या इसी साल में जब तक दिवाली आएगी, दिवाली तक हो सकता है 2.5-3 लाख लोग जाएं हर रोज अयोध्या में, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड. दैट मीन्स इट विल बी व्हाट, बिगर देन द वैटिकन. अभिषेक मिश्रा जी. You are right, absolutely right. Ayodhya, the Ram Janmabhoomi, is the symbol of India's cultural resurgence. It is a message to the whole world that the Sanatan Dharma has risen. The flag of Sanatan Dharma is now fluttering with pride, and it's showing to the world the truth and eternal values of our great religion and civilizational heritage. So definitely, I will not compare it to Vatican or anything. Let us not make comparisons between religious places. They all are important for the devotees. But yes, Ram Janmabhoomi, Ayodhya is a defining monument to humanity's focus on truth, dharma, and the message of universal, peace and brotherhood. So No, hang on. I didn't mean that you should make a comparison. What I'm trying to say is, like Pradeep ji has actually been to the Vatican. He's actually been to St. Peter's Cathedral. All I'm saying is, just like everybody wants to see the Sistine ceiling painted by Michelangelo, people, I think, very shortly will want to come to Ayodhya for that reason. So I hope all the infrastructure and the other facilities will also be developed in and around Ayodhya, including my own favorite pet project, the cleaning of the Saryu River. जो सरयू है उसके पानी को निर्मल बनाना है, अविरल बनाना है, पवित्र बनाना है. उसके बिना नहीं होता सर. जो हमारा सबसे बड़ा धर्म स्थल है, वहां पर अगर river has been turned into a sewer, it's like horrible. Let's be very clear. We should start from there. अभिषेक मिश्रा जी बताएं. एकदम सही कह रहे हैं आप. अभी तो ये शुरुआत है. धीरे धीरे पूरा एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके आसपास क्रिएट होगा. इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ ही चुका है. विदेश से, दुनिया भर से इसमें श्रद्धालु आएंगे, देखने आएंगे. जो धर्म को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो भी आएंगे. इसमें बहुत बड़ा ये ग्लोबल रिलीजियस स्टडी का भी सेंटर बनेगा, टूरिज्म का भी सेंटर बनेगा, स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज का भी सेंटर बनेगा, एक आर्किटेक्चर मार्वल का भी सेंटर बनेगा. अयोध्या राम जन्मभूमि, वो जो जन्म स्थान है, वो पूरा वर्ल्ड में एक शाइनिंग एग्जांपल होगा. पूरा विश्व को आदर्श मिलेगा. और स्टेप बाय स्टेप आप देखना कि विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जो राम जन्मभूमि के मुकाबले खड़ा होगा. एक महान दृश्य होगा, अचंभित करने. Right, thank you so much, sir, Abhishek Mishra ji, and you can continue with your lovely interaction with all the lovelies in the world. We feel really and truly happy to see you so happy. Thank you very much. नमस्कार. शुक्र का प्रभाव है, शुक्र का. जी. शुक्र का होगा, शुक्र का होगा. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. थोड़ा शुक्र हम भी छीन लेते हैं आपसे. Right? I don't think our producer liked that. He just cut off Abhishek Mishra ji when he was laughing at your comment. Yes. I don't think our producer liked it. That's right. He doesn't like Venus. Absolutely not. Engineering, he doesn't like that. Engineering.